Hello guys, I am there to discuss with you the proposed new syllabus of Advanced Financial Management Paper 2 of CA Final. 6 महीने से लास्ट 6 मंथ्स में रिपीट करती आई, बार बार यूट्यूब पे बोलती आई, पोर्शन चेंज नहीं हो सकता, पोर्शन चेंज नहीं हो सकता, नहीं हो सकता. Okay, it's not possible. I've been saying that, and that is why I had full faith in what I was saying. दुनिया में जितने करिकुलम में बोलती आई मैं दैट फॉरेक्स, डेरिवेटिव, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, बॉन्ड, इक्विटी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड्स, मर्जर्स, हाउ कैन यू चेंज दिस टॉपिक्स? You can just increase the level of difficulty. You can include a few more topics, okay? Topics as in subtopics also and new chapters also. You can do that. तो अगर मुझसे पूछोगे कि मैम क्या चेंज हुआ, और ये मैं उन बच्चों के लिए बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे कहने पे, मुझ पे ट्रस्ट करके 2022 की रिकॉर्डिंग्स उन्होंने खरीदी ऑन द प्रॉमिस दैट I will update them whatever portion is like updated in the new content. So देखो ना तुम कुछ क्या किया उन्होंने, कुछ भी नहीं ऐसा किया है कि तुम्हारा जो पढ़ा हुआ है 2022 की जो recordings whatever you have been doing, not a single word, not a single question of that content is of waste. पूरा का पूरा content AFM के अंदर में तुम्हारा use हो जाएगा. And I promise you whatever new topics, the green color will be given to you from my side, okay? And most of them, believe me guys, is in the form of theory. And the reason behind is that maybe that would be easy for us because multiple choice questions में आने वाला है तुम्हारे पेपर में, okay? So it will be easy for them to frame questions in the form of MCQs actually. And good part, one thing I'm really happy, कुछ ऐसे topics उन्होंने add किए हैं इस portion के अंदर में, okay? Which are new. And portion must be updated as per the new changes in the geopolitical situation actually. Technology, startups, so many things have changed especially during COVID. तो वो updation तो आना ही चाहिए था. And I really welcome that part from the side of ICI. One topic जब हटाया था तब भी मैंने बोला था 2018 में the biggest green that you can see on the screen, capital budgeting. मैंने बोला था ये topic इनको नहीं हटाना चाहिए था. Because this is the chapter, the base of finance, okay? ये whether you are doing a job or you are doing a business or doing anything for that matter, doesn't matter. Capital budgeting concepts we use on a day-to-day basis for that matter. And you learn so much about playing with the cash flows, discounting, compounding. Time value of money में हम सिर्फ पढ़ते हैं concept. Okay, what are the tools of time value of money? Application करने का पूरा जो मौका मिलता है, the opportunity that you get to apply those concepts of time value of money is a topic called capital budgeting for that matter. So we welcome this topic again in the portion of advanced financial management or AFM, which was removed from the curriculum in 2018. I can see that more or less the portion is same, but कुछ चीज़ें मुझे words जो हैं वो पूरी तरह से समझ में as in कि उसके अंदर content क्या देने वाले हैं depend करेगा. जब तक कि detailed उनकी module, उनका syllabus, उनके questions नहीं आते तब तक comment नहीं कर सकते. But primarily 80% to 90% the portion is the same which we used to teach prior. For example, like current trends in the capital budgeting, inflation का impact, and then this I can see impact of change in the government policies on capital budgeting. This I can see is new. We have not done any sum in the past actually on this topic. Then dealing with the risk in the investment decision, that we have done. You would have done in CA Inter also. Then okay, then methods of incorporating risk in the capital budgeting, ये हम सब ने किया है, तुमने CA Inter में भी किया होगा. APB approach, ये भी हमने किया है. So 2-3 topics, the names look like a bit new, okay, but I'm sure जब वो तुम्हारा detailed curriculum syllabus, जब उनका module content जब detail में आएगा तो we should be able to manage it. But then this topic is a complete addition to the existing portion of SFM. Okay, इस तरफ देखो मैंने blank रखा है because वहाँ वो टॉपिक नहीं था, and that is why the numbering has also changed. If you see the topic security analysis, I can't see any change. क्या change कर सकते हैं? Okay, so fundamental analysis, these are standard. Technical analysis, theories, principles, EMH, and then one topic जो green में दिख रहा है ना, that is the addition actually. Equity research and tools available actually. Okay, this
लुक्स लाइक, अब डिपेंड करेगा कि ये टॉपिक विल बी प्योर थियोरी और दे आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस ऑल्सो ऑन दैट वी डोंट नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. Going ahead in the portion, if you ask me, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, आई कांट सी, यू कैन सी कंप्लीट मैच टू मैच, और हमने वो सिलेबस एसएफएम का देख के ये मैपिंग करी है. टू टॉपिक्स आई कैन सी, ओके, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वैल्यूअर्स एंड प्रिकॉशंस नीड टू बी टेकन बाय अ वैल्यूअर बिफोर एक्सेप्टिंग एनी वैल्यूएशन on of an asset basically. Okay, so looks like theory topic only at this point of time. Okay, then portfolio management mein guys, this topic alternative investment, this one alternative investment strategy, सिर्फ name change कर दिया, alternative investment avenues. जो बच्चे CFA परसू कर रहे हैं ना, उनको ये पता है, because the name of the subject is only alternative investments. तो तुम अगर पुरानी वाली मॉड्यूल, if you take out your old module, okay, of SFM, तो you would see that they have given the explanation of only real estate. Actually rest all of them have सिर्फ mention करके छोड़ा है, ये gold, private equity and all that. Okay, but we are like, और अगर देखोगे तो तुम बोलोगे मैम यहाँ नहीं है क्या, यहाँ भी ये नेम मैंशनड है, वहाँ पे अगर तुम खोल के देखोगे उनका मॉड्यूल तो मैंशनड है, बट दिस टाइम दे हैव गिवन अ मोर डिटेल्ड सिलेबस, बट वी डू नॉट नो एक्सप्लेनेशन वो लोग देने वाले हैं कि नहीं देने वाले हैं, और दे आर गोइंग टू लीव द कॉन्टेंट ऑफ द मॉड्यूल द वे इट वॉज इन SFM. आई मीन टू से these names were already in the module of SFM also, भले ही वो इंडेक्स में mentioned नहीं है, बट मॉड्यूल के अंदर names तो mentioned था. अब इस बार हमें ये देखना है कि whether they are going to explain the paragraphs and the detailing also, वो करते हैं क्या. ओके, आगे securitization, this has to be 100% theory topic and a very important topic from the theory perspective, and two subtopics have been added in comparison to the SFM curriculum, risk and securitization and tokenization. ये तुम्हारे जो I don't know whether you know this or not, kind of तुम्हारे जो न्यू इंस्ट्रूमेंट्स आए ना मार्केट में, उससे रिलेटेड ये लोग कुछ ना कुछ यहाँ पे मेंशन करेंगे. सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि दे हैव मेंशन्ड सम न्यू थिंग्स विच आर लाइक वेरी वेरी रिसेंट. ये अच्छी बात है, मतलब उन्होंने थोड़ी एफर्ट ली है कि करिकुलम को मार्क टू मार्केट, जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है, एनवायरनमेंट की जो रिक्वायरमेंट है, वो उन्होंने फुलफिल करने की कोशिश करी है. ओके, देन म्यूचुअल फंड्स में रोल ऑफ फंड मैनेजर इन म्यूचुअल फंड्स, अगेन अ थियोरी, ये नहीं था पुराने वाले करिकुलम में, आई हैव सीन माई सेल्फ. एंड रोल ऑफ FIIs इन म्यूचुअल फंड्स, ये भी नहीं था. इफ़ यू सी बोथ ऑफ देम आर वेरी गाइस, इस तरह से तो अगर करूँ ना तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐड कर सकते हैं, बट ये दोनों इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छे टॉपिक्स हैं. डेरिवेटिव्स में इफ़ आई सी, ओके, दे हैव डेफिनेटली ऑप्शन ग्रीक्स. यहाँ पे देखो, तुम अगर देख रहे हो ना, तो तुमको अगर यहाँ पे ऑप्शन प्राइजिंग ये सब नहीं दिख रहा है ना, बट ये ऑलरेडी है, तभी तो ग्रीन में कवर नहीं किया है. ये टॉपिक्स नहीं थे. एक्सॉटिक ऑप्शंस, क्रेडिट डेरिवेटिव्स, रियल ऑप्शंस. रियल ऑप्शंस वी यूज टू स्टडी इन कैपिटल बजटिंग इन 2018. जो पहले पोर्शन था ना, उसमें रियल ऑप्शन टॉपिक वॉज देयर इन द कैपिटल बजटिंग. तो इस बार उन्होंने कैपिटल बजटिंग से रिमूव करके उन्होंने डेरिवेटिव्स में डाल दिया. क्या ही फर्क पड़ता है. देन वेदर डेरिवेटिव्स, इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स, ये गाइस हम लोग कब से पढ़ते आ रहे हैं पता है, बिकॉज वी कम फ्रॉम अ कोर फाइनेंस बैकग्राउंड. दीज टॉपिक्स, वेदर डेरिवेटिव्स, इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स एंड ऑल, वी हैव बीन स्टडिंग सिंस, लाइक जो भी whosoever people are there in the industry, in the field of teaching, and they have a lot of experience in terms of the curriculums, education, job experience. उनको सबको ये पता है कि ये कोई 20 साल से हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें कोई नई चीज़ें नहीं आई है. वेदर डेरिवेटिव्स एंड इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स एंड ऑल, दीज आर नॉट न्यू टॉपिक्स. हाँ, हमारे करिकुलम में अभी उन्होंने ऐड किया है. ओके, देन if you see again the portion remains the same, only role of SWIFT in the foreign exchange. Okay, so role, this looks like again a theory topic. National and international payment gateways, so these are like just as I told you कि तुम्हारा जो environment है उसको suitable होना चाहिए हमारा curriculum. It cannot be an outdated curriculum for that matter. So good that they have taken some effort. I'm just appreciating again and again. If you see international financial management guys, again it is the same. एंड ये है ना तुम्हारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, ये टॉपिक ये इन्होंने हटा दिया था टॉपिक से. तब भी मैंने बोला IFC नहीं हटाना चाहिए था. इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर्स लाइक काइंड ऑफ गिफ्ट सिटी सिर्फ लिखा हुआ है, बट आपको अगर IFC के बारे में नहीं पता है तो गिफ्ट सिटी के बारे में भी नहीं आपको समझ में आएगी. फॉर एग्जांपल दुबई, देन शंघाई, देन लंदन, देन
kind of New York, Singapore, Hong Kong. These are international financial centers. इंडिया का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, जिसको गिफ्ट सिटी बोलते हैं, ये गुजरात में गांधीनगर में डेवलप हो रहा है. अगर आपको पता नहीं है तो आप प्लीज़ उसके बारे में पढ़ोगे, अच्छी बात है. ये आया था न्यू करिकुलम में. उन्होंने 2 थियोरी के टॉपिक रिमूव किए थे एसएफएम के अंदर से. इफ़ यू रिमेंबर एट ऑल, 4 टॉपिक्स वेर एडेड. सिक्योरिटाइजेशन, स्टार्टअप, आईएफसी एंड एक टॉपिक और था, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. 4 था. तो उन्होंने 2 हटाए थे, उसमें से एक आईएफसी था. अभी जो फिलहाल में तुम्हारे हैं स्टार्टअप है और सिक्योरिटाइजेशन है. स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड आईएफसी दे हैड रिमूव्ड. सो दिस टाइम अगेन दे आईएफसी उन्होंने ऐड किया है. एंड अगेन दैट्स अ गुड पार्ट एक्चुअली. देन इफ यू से इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, whatever is not shaded in green, that means there is a complete overlapping. Green में अगर देखोगे तो asset and liability management was never there in the portion of this subject. SFM बोलो, AFM बोलो, जो बोलना है बोलो, ये नहीं था. Good that they have added. Forward rate agreement was there. This shouldn't be in green. ये था. ये तो बहुत पुराना टॉपिक है, ये यहाँ भी है. मेंशन नहीं किया होगा. दिस इज अ मिस्टेक फ्रॉम आवर पार्ट. फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट पे भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, थियरी भी आती है, सब आता है. इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अब तक उन्होंने नहीं पूछा है. थियरी है, बहुत स्लाइड कभी कभार पूछा है. तो वी कैन नॉट से कि ये नहीं था. इंडेक्स में मेंशन नहीं है, बट आई कैन नॉट से कि ये नहीं था. हल्का हल्का था. इस बार देखते हैं डिफिकल्टी लेवल क्या लेके जाते हैं. बिकॉज अगर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स लेके आते हैं देन दिस वुड बी द वन ऑफ मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स और मोस्ट not difficult as in I should say. That means they are getting into finance on a core basis. If you see the CA final curriculum, उन्होंने इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स नहीं दिया, लाइक टी बॉन्ड फ्यूचर्स एंड यूरो डॉलर फ्यूचर्स एंड टी बॉन्ड फ्यूचर्स एंड ऑल दैट, टी बिल फ्यूचर्स, ये सब नहीं था ना पोर्शन. इस पे क्वेश्चंस कहाँ आ रहे थे, नहीं थे तुम्हारा पोर्शन. तो इस बार मुझे ये देखना है कि वेदर दे आर एडिंग क्वेश्चंस ऑन दीज टॉपिक्स ऑल्सो. ओके, देन ऑप्शंस पे है, so these would be all again theory topics only. Again, this topic corporate valuation जो SFM में ये लोग बोल रहे थे, this is called business valuation in the new. दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है. सारे टॉपिक्स देखो कट टू कट बिल्कुल सेम है. लेकिन ग्रीन में यू कैन सी going concern and non-going concern valuation, valuation of distressed companies, valuation of startups, valuation of digital platforms. Very good. This is something very, very smart I can see. Valuation of professional and consultancy firms and impact of ESG on valuation. ये समझता है क्या है? Environment, social and corporate governance actually. ESG on valuation. Okay. In fact, CFA Institute has also updated their portion with this topic. ESG portion उन्होंने भी अपडेट किया है. अगर सीए इंस्टीट्यूट ने भी किया है तो आई एम रियली हैप्पी. मर्जर एंड एक्विजिशंस इफ यू सी अगेन दे आर सेम. देन स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज एक टॉपिक ऐड किया है. कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिकॉर्न, योर फेवरेट, दिस हैज बीन एडेड. एंड सक्सेशन प्लानिंग इन बिजनेस अगेन लुक्स लाइक ऑल थियरी टॉपिक्स, अ लॉट ऑफ देम हैव बीन एडेड. सो नॉट टू वरी. आई डोंट थिंक प्रैक्टिकल पार्ट का पता नहीं है. जब तक कि वो क्वेश्चंस नहीं देंगे हमें पता नहीं चलेगा. बिकॉज सी, जब 2018 में पोर्शन चेंज किया था, ओके, तो वॉट एवर क्वेश्चंस वी यूज टू टीच इन माफा बिफोर 2018, मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे सामने 4th टाइम हो रहा है. ओके, तो पहले माफा था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, इस सब्जेक्ट का नाम माफा था. उसके बाद आया SFM, उसके बाद आया न्यू SFM. ओके, 2018 में आया न्यू SFM. तो माफा चेंज हुआ 2010 के लगभग में, तो फिर आया SFM. SFM फिर चेंज हुआ 2018 में, तो आया न्यू SFM. और अब न्यू SFM चेंज होकर के आया है AFM. ओके, सो लेट मी टेल यू वन थिंग फॉर श्योर. ओके, टिल न्यू SFM वी हैव बीन टीचिंग ऑल द क्वेश्चंस ऑफ ओल्ड SFM and MAFA also, and we are going to do the same questions in AFM also. Don't get worried at all. Just give your best, study hard, because then you will have to allocate some more number of hours to this subject again, because थियरी भी तुमको पढ़नी पड़ेगी और ज़्यादा अच्छे से तुमको थियरी पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सब इन्वॉल्व हो रहे हैं इसके अंदर में, और कैपिटल बजटिंग तो पढ़ना ही पड़ेगा. सो गाइज, ऑल ऑफ यू, लाइक आई वॉन्ट टू से वन थिंग दैट वी आर ऑलरेडी रेडी विद द पेन ड्राइव्स एंड गूगल ड्राइव्स फॉर दैट मैटर. पेन ड्राइव्स नहीं लोगे तो अच्छा होगा, गूगल ड्राइव से हमें कंफर्टेबल रहेगा. ऑलरेडी अराउंड आई फील दैट 60 to 70 hours ऑफ रिकॉर्डिंग इज ऑलरेडी अवेलेबल, विच यू कैन स्टार्ट स्टडिंग. प्लीज़ कॉन्टैक्ट खैतान एजुकेशन इफ़ यू वॉन्ट टू बाय द रिकॉर्डिंग्स ऑफ AFM, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के का जो ड्राइव है वो ऑलरेडी 60-70 घंटे का बैच ऑलरेडी चल रही है फेस टू फेस की. वीकेंड बैच है
एवरी वीक वी आर अपलोडिंग अराउंड 8 to 10 hours ऑफ लेक्चर, लेकिन अभी तो तुमको 60-70 घंटे पढ़ने में टाइम लगेगा. दीज रिकॉर्डिंग्स वुड बी एप्लीकेबल till May 25, no problem at all. Okay, if you have any doubts, please write on the comment box. I am going to definitely reply your doubts. कुछ भी तरह का अगर तुमको लगता है डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालो, मैं ज़रूर आपके जितने भी क्वेश्चन क्वेरीज होंगे वो सारे जवाब दूंगी. एंड गाइज, ऑल ऑफ यू who trusted me, bought the pen drives way back, completed their subject, now they have to just cover up, you know how many hours, 25 to 30 hours का अगर मैं उनको lecture दूंगी, and they would be sorted with the subject of AFM. Okay, thank you so much. I'm sure this video was of great use to you, and please subscribe our channel, ring the bell, and keep following us. Thank you so much.